student. Welcome to my YouTube channel. Uh, Myself Mad Ashar. I have completed my MTech from NIT Warangal. So today I will start environmental engineering subject uh, as per GATE. So if you are preparing for GATE, EAC or other state CE or JEE exam, then this lecture will be helpful for you. And even if you are in college and you are not currently preparing these exams, but you have a semester exam, then also this lecture will be helpful for you to clear the concept of environmental engineering. Okay, so this subject is very important as per all these competitive examination. So today we will start with the very first chapter, which is water demand and population forecasting. Okay, so our first chapter will be water demand and population forecasting. Okay, so in this video or in this first lecture, so this will be like first lecture of water demand. So in this first lecture, I will try to cover water demand. Okay, and from the second lecture, I will deal with this population forecasting. Okay, so um, let's start. What is actually water demand and why we study this? So as a engineer, your task is to design water supply scheme. Okay, so suppose you are engineer and you have to design what water supply scheme. Okay, or water supply system, we can say system. So a water supply system has uh, different components. Okay, so what is the first component, like for example? So basically you have to design water supply system, and for that system this water demand plays very important role. Why? Because water supply system has different components. For let's suppose let's see, the first is like source. Okay, source is from where you will take the water. Okay, when you have the uh, canal or some or pipe system, maybe canal or pipe system throughout the water treatment plant. Okay, so this is like water treatment plant, WTP means water treatment plant. Okay, first is source, and then second is water treatment plant. Okay, then you have pump system, pumping system. Okay, so actually pump the water to service tank. Okay, where
to pump the water to service tank. Okay, and from the service tank water will supply to the city. Okay, so this will be like service tank. Okay, then again you have pipe system, and this pipe network will supply the water. This is, suppose this is pipe network within the city. Okay, to supply the uh, water. So you will not design or all this component for current scenario or um, whatever the situation, whatever the demand right now, right? Because this all this component will cost while building. Okay, तो अगर आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम बनाना है, तो कोई भी ये जो कंपोनेंट होगा, ये सारे जो कंपोनेंट हैं हमारे, ओके, तो ये कंपोनेंट आप अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देख के डिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है? कि हमारा फ्यूचर को देख कर के डिज़ाइन करेंगे, राइट? ठीक है? तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर को देख कर के डिज़ाइन करेंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा कि जो अभी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, हमारी पॉपुलेशन फ्यूचर में बढ़ेगा, ठीक है? तो हम उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ये पॉपुलेशन फोरकास्ट, ठीक है? और वाटर डिमांड किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं कि ये जो पूरे नेटवर्क है, ये जो पूरे कंपोनेंट है, ये एक्चुअली हमारा अभी और इन फ्यूचर क्या डिमांड आने वाला है, वाटर का कितना रिक्वायरमेंट है। वाटर डिमांड मीन्स नथिंग बट वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पज विद इन द सिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सो वाटर डिमांड इज नथिंग बट, तो वाटर डिमांड क्या है, तो एक्चुअली हम लोग कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हम हमको वो कितना सप्लाई चाहिए, कितना देना है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री होती, फॉर एग्जांपल सपोज चिप्स की इंडस्ट्री, सपोज फॉर एग्जांपल, तो चिप्स की इंडस्ट्री जो भी है, तो वो पहले मार्केट में जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी शॉप्स पे ये चिप्स बिक रहा है, ठीक है? जितने भी शॉप्स में ये चिप्स बिक रहा है, वहाँ पे डिमांड कितनी है, कितने डेली कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एवरी शॉप्स 100 पैकेट पर डे सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से पूरे सिटीज़ में कितने शॉप हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे अपना प्लांट सेटअप करते हैं जो भी बना रहे होते हैं, ठीक है? चिप्स के पैकेट अगर बना रहे हैं, ठीक है? इंडस्ट्री में। तो वैसे ही हमारा जो भी ये सेटअप है यहाँ पे, तो किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ का सेटअप जब लगा रहे होते हैं, तो फर्स्ट हमारा कितना रिक्वायरमेंट उसकी, मतलब कितना हमें सप्लाई करना है, कितना डिमांड है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग वाटर डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग वाटर डिमांड पढ़ते हैं। तो वाटर डिमांड क्या हुआ एक्चुअली, इट इज़ द, ये हम एक हटा देंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो वाटर डिमांड क्या है एक्चुअली, तो इट्स नथिंग बट द वाटर रिक्वायर्ड विद इन सिटी फॉर डिफरेंट पर्पज, ठीक है? फॉर डिफरेंट पर्पज। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि जैसे हमारा डोमेस्टिक डोमेस्टिक पर्पस में क्या आ गया, जैसे हमारा बाथिंग, कुकिंग, ओके, वॉशिंग, ठीक है ना? ये सब हो गया। फिर इंस्टीट्यूट
पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे वाटर डिमांड रहेगा। फिर हमारा जैसे कि हमारा इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री वगैरह में रहेगा, ठीक है ना, एटीसी। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड पढ़ेंगे अभी कि कितने तरह के वाटर डिमांड्स होते हैं, है ना। वे एक सिटी में मोस्टली मतलब कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं और बेस्ड ऑन दैट डिमांड हम लोग सारा डिज़ाइन करेंगे, ये हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये सारा यूनिट जो है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम का ये डिज़ाइन होगा, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ रहे हैं वाटर डिमांड में, ओके। तो इसमें हम लोग जो वाटर डिमांड होता है इसको हम लोग एक यूनिट में मेजर करते हैं, जिसको कहते हैं एलपीसीडी, ओके, सॉरी, एलपीसीडी में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो एलपीसीडी क्या होता है, तो लीटर पर कैपिटा और पर हेड, पर कैपिटा या इसको हेड भी कहते हैं, पर हेड, ठीक है, पर हेड, ओके। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एलपीसीडी और एलपीसीडी में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं हम लोग पहले सबसे। एलपीसीडी का मतलब क्या होता है, लीटर पर कैपिटा पर डे। पर कैपिटा मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपका कोई एक सिटी है, ठीक है, ठीक है। तो इस सिटी की पॉपुलेशन है, सपोज करिए आप 5000 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, 5000 इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ओके। और यहाँ वाटर डिमांड है, सपोज सपोज से फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 100 एलपीसीडी का वाटर डिमांड है, ठीक है ना, ओके। तो इससे हमारा टोटल वाटर डिमांड एक दिन में कितना है ये निकालना अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको 5000, क्योंकि ये पर कैपिटा मीन्स पर हेड, दिस इज फॉर पर हेड, ओके। बट हाउ मेनी पॉपुलेशन वी हैव इन दिस सिटी, टोटल ऑफ 5000, ओके। तो अगर हम पूरे सिटी के लिए वाटर डिमांड निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 5 लाख लीटर पर कैपिटा पर डे। और ये हम हटाकर सिर्फ यहाँ पे ही लिख देते हैं, ओके, 5 लाख एलपीसीडी। तो हमें इस सिटी के लिए कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है एक दिन में, कितना हो जाएगा 5 लाख लीटर, ओके। तो ये हुआ एलपीसीडी का मतलब, ठीक है। अब हम लोग एलपीसीडी में ही क्यों इसको डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा वाटर जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग टाइप का है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलग है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं यहाँ पे कि हमारे कैसे कैसे वाटर डिमांड हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा डोमेस्टिक हो जाएगा पहला, ठीक है, डोमेस्टिक है। फिर हमारा दूसरा आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, ठीक है। तो एक मिनट, पहले हम इसकी हेडिंग देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं और इसी में हम लोग समझाएंगे कि एलपीसीडी में क्यों हम लोग कैलकुलेट किए वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, ओके। तो पहला हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक, ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग। तो डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड हो गया। फिर तुम्हारा आ जाएगा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डिमांड, ओके। फिर तीसरा आ जाएगा हमारा इंस्टीट्यूशनल, ओके।
इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल डिमांड, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड, ठीक है। और फोर फोर हमारा आ जाएगा फायर डिमांड, ओके, ठीक है। अब हमारा आ गया फोर के बाद फाइव, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये सब डिफरेंट टाइप्स जो है, कौन सा टाइप किस में आता है और क्या क्या है, ठीक है। बट अभी बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिमांड फॉर फाइव क्या हो गया, पब्लिक यूज, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा तो हमारा लास्ट टाइप जो है ये है सो वाटर रिक्वायर्ड, किसके लिए, टू कंपेंसेट, क्योंकि हमारा चाहे जितना भी अच्छा सिस्टम हो, सप्लाई सिस्टम हो, हमारा कुछ वाटर क्या होगा, लॉस में जाएगा, ठीक है, टू कंपेंसेट लॉस एंड थेफ्ट, ठीक है। और कुछ जो है हमारा चोरी होएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी की चोरी भी करते हैं, ठीक है ना, उसके कंपेंसेट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगा वो इस डिमांड में आएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए जो टाइप्स ऑफ डिमांड है ये कितना अलग है एक दूसरे से, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कितना वैरी करेगा, कोई सिटी क्या बोलते हैं ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है, कोई सिटी में इंडस्ट्री कम होता है, तो अलग अलग इसको लीटर में बताना काफ़ी मुश्किल है कैलकुलेट करना, राइट, ठीक है। तो हम हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड को सिर्फ लीटर में या किसी और यूनिट में बताएं तो समझना भी, कैलकुलेट करना ये काफ़ी मुश्किल पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या किए कि वाटर डिमांड जब भी बताते हैं तो हम लोग एलपीसीडी में बताते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी सिटी है आपकी, ठीक है ना, कोई भी सिटी, ठीक है, जहाँ लोग रह रहे हों वहीं आप वाटर सप्लाई करेंगे, राइट। ये जानवर के लिए तो आप नहीं करने जा रहे अभी वाटर सप्लाई, ठीक है ना, ठीक है। तो हम वहाँ पे जिस भी सिटी में आपको ये डिज़ाइन सप्लाई स्कीम बनाना है तो वहाँ पॉपुलेशन होगा ऑलरेडी, ठीक है ना, वहाँ पॉपुलेशन होगा कुछ ना कुछ, जो भी पॉपुलेशन होगी उस सिटी, ठीक है। तो हम लोग हर एक डिमांड को पॉपुलेशन के टर्म्स में ही बताते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। फॉर एग्जांपल चलो अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर हम बोले इंडस्ट्रियल डिमांड है हमारा, एग्जांपल के लिए आपको लेके चलते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है, 50 एलपीसीडी, ठीक है, 50 एलपीसीडी। तो हम सिर्फ एक कैटेगरी का अगर डिमांड निकालना चाहें तो भी बहुत इजी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है 50 एलपीसीडी है, ठीक है। अब हमें पॉपुलेशन सिटी की पता होगी, सिटी की पॉपुलेशन सपोज अगर हमारे पास 1000 है, 1000 है, ठीक है, कितनी है, 1000, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1000 सिंपल, विच इज 50,000 लीटर पर डे, है ना, ठीक है। ये लीटर पर कैपिटा पर डे, और हमारा कैपिटा यानी हेड कितना आया, 1000, ठीक है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000 लीटर पर डे आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी हो गया, राइट। तो इसलिए हम लोग एलपीसीडी के टर्म्स में सारे डिमांड को डिनोट करते हैं, वाटर डिमांड को, ठीक है, सारे तरह के वाटर डिमांड को, ठीक। तो अब हम लोग वन बाई वन ये टाइप ऑफ जो डिमांड था वो देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला हमारा जो था वो है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक यूज, वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है। तो डोमेस्टिक यूज में क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो डोमेस्टिक यूज में
आपको आ गया सबसे पहले वाटर रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है ना? जो कि हम लोग घर में जो भी यूज़ करते हैं घर में जनरल पर्पज़ के लिए, ठीक है ना? वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है? वॉशिंग, है ना? मतलब कपड़े वगैरह धोने के लिए, ठीक है? बाथिंग, है ना? ये सब के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा वाटर का, ये सारा इसमें आएगा डोमेस्टिक डिमांड में, ठीक है? वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, ठीक है? ओके? तो अब हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है, ठीक है ना? तो कहाँ है? इसको हम लोग डोमेस्टिक डिमांड लिख लेते हैं, डोमेस्टिक यूज कह सकते हैं या फिर डोमेस्टिक डिमांड कह सकते हैं, ठीक है? ओके। तो डोमेस्टिक डिमांड होता कितना है, ठीक है ना? तो एज पर आईएस कोड, ठीक है? आईएस कोड, हमारा आईएस कोड जो है 1172 1993 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर डिमांड होगा वो क्या होगा? 135 टू 225 एलपीसी। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 135 टू 225 एलपीसी, ठीक है? अब जो विलेज एरिया होते हैं, ठीक है? विलेज एरिया और फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वहाँ पे तो हमारा वाटर डिमांड थोड़ा कम होता है, ठीक है? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो वहाँ हम विलेज एरिया या फिर हम जहाँ पे थोड़े गरीब लोग रहते हैं, पुअर, ठीक है? और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है? तो जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहता है, वहाँ पे जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना? तो वहाँ थोड़ा कम वाटर डिमांड देखा गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए, तो वहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता है। और विलेज एरिया क्या होता है, 135 एलपीसीडी में काम हो जाता है ना? ठीक है, ठीक है? और जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है? फुल फ्लशिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, फ्लश करने में ही आपका 5 से 6 लीटर पानी लॉस होएगा, ठीक है? यूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो जहाँ भी फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, यानी शहर वगैरह में जहाँ पे थोड़े अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखें कि ये डिमांड थोड़ा बढ़कर 200 एलपीसीडी चला जाता है। और जहाँ पे आपको ज़्यादा रिच पीपल रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपका क्या होगा, ये डिमांड इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उनका स्विमिंग पूल है, ठीक है? स्विमिंग पूल में फिर उनका वॉशिंग मशीन, ये सब में जो है वाटर ज़्यादा यूज़ होता है, कंजप्शन होता है, ठीक है ना? तो इसलिए वहाँ पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा होता है जहाँ पे थोड़े अमीर लोग रहते हैं, और जहाँ पे थोड़े गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ा हमारा कम में चलता है, ठीक है? काम चल जाता है। तो फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए क्या है, 200 एलपीसी, ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है डोमेस्टिक डिमांड जो होता है, ये ऑलमोस्ट होता है टोटल डिमांड का 50 to 60% होता है, 50 to 60% होता है टोटल डिमांड। ये देखा, ये ठीक है, 60%।
टोटल डिमांड, ठीक है। और अब हम आते हैं सेकेंड नंबर। तो हमारा सेकेंड क्या था? इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिमांड, तो इंडस्ट्रियल डिमांड का क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ये डिमांड जो है सबसे ज़्यादा वैरी करता है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है? जो वाटर डिमांड किसके लिए है? इंडस्ट्रीज के लिए। वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो हर सिटी में अलग तरह की इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना। बहुत तरह की इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो वाटर डिमांड हो वो हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड में आएगा, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है। हमारा फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, और लेदर इंडस्ट्री है, और बहुत तरह के जितने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो इन सब के जब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है तो उनमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो इंडस्ट्रियल डिमांड में आता है। तो ये देखा गया है कि ये जो होता है काफ़ी हाई वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है ना। शोज वेरी हाई वेरिएशन, ठीक है। कहीं तो काफ़ी कम में काम चलेगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री ही नहीं है किसी सिटी में। अगर इंडस्ट्री नहीं है, कम है बहुत, तो वहाँ कम में काम चलेगा। पर कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो ये वेरिएशन जो है आपका वो 50 से 450 एलपीसीडी देखने को मिलता है। 50 से 450 एलपीसीडी देखने को मिलता है, ठीक है। शोज लार्ज वेरिएशन, यहाँ पे आप लिखिए कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, ठीक है। शोज लार्ज वेरिएशन, ओके। फिर हमारा आ जाएगा तीसरा, डिमांड। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जनरली देखा गया है कि वाटर जो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, वाटर डिमांड, वो मिनिमम होता है फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कम, मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होता है वहाँ पे कम रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ओके। और मैक्सिमम होता है हमारा फॉर पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा डिमांड। तो तीसरा टाइप का हमारा जो डिमांड होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल, क्या था? इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। वो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा सिनेमा हॉल है, ठीक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ सब जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो सब हमारा आएगा इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड। तो आप इसमें सिर्फ एक पॉइंट मेन याद रखिए कि जितने भी तरह की सर्विस प्रोवाइडर है, अगर कोई बिल्डिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसी तरह की अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है बिल्डिंग्स और कंपोनेंट, कह सकते हैं, तो वो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है जो कि एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक है, कि पीएससी में पूछा था, ठीक है, कि हमारा रेलवे जो डिमांड होता है वो किसके अंदर आता है।
वाटर डिमांड फॉर रेलवे, ठीक है। तो वो भी हमारा कहाँ आएगा, इंस्टीट्यूशन, क्योंकि रेलवे क्या है, एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ट्रैवलिंग सर्विस, राइट। तो ये भी हमारा किस डिमांड में आएगा, दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल डिमांड, ठीक है। तो ये हमारा कितना होता है, ये जनरली देखा गया है कि तो जनरली देखा गया है कि ऑन एवरेज ये जो डिमांड है ये वैरी करता है, वैरीज फ्रॉम 20 टू 50 एलपीसी, ठीक है। अब हम एक देखेंगे, हमारा कितना हो गया ये, तीसरा। तो हमारा फोर्थ टाइप अब आ जाएगा, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। तो इसमें क्या आता है, डिमांड फॉर पब्लिक यूज में कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर आपको रोड वॉशिंग, फॉर एग्जांपल रोड वॉशिंग, फिर आपको रिक्वायर्ड फॉर पार्क, पार्क के लिए, गार्डनिंग के लिए, तो ये सब आता है, दिस ऑल कम्स अंडर डिमांड फॉर पब्लिक यूज, एज पर जीओआई, ठीक है। जीओआई के नॉर्म के अकॉर्डिंग, जीओआई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, दिस शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड, ओके। वाटर डिमांड जो भी हमारा टोटल वाटर डिमांड है सिटी का, उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये ऑन एन एवरेज कितना आता है, इसके लिए रखा गया है 10 एलपीसी में ये काम हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ऑन एन एवरेज ये 10 एलपीसीडी होता है डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आएगा फायर डिमांड, ओके। तो फायर डिमांड में हमारा क्या है, फाइव, फायर डिमांड में हमें थोड़ा डिटेल में इसमें पढ़ना है और समझना है, और इसमें कुछ एम्पेरिकल फार्मूलाज वगैरह भी आते हैं, ठीक है ना, एम्पेरिकल फार्मूलाज आते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम भी बनता है यहाँ पे। तो ये हम लोग थोड़े अच्छे से देखना पड़ेगा इसमें, तो हम लोग ये कल देखेंगे, ठीक। तो कल वो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बच जाएगा फायर डिमांड और वाटर रिक्वायर्ड फॉर थेफ्ट एंड लॉस के लिए जो रहेगा वो देखेंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग आ जाएंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट के लिए देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे, ठीक। सो इफ यू लाइक देन प्लीज डू सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, लाइक भी करो और दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट सर्किल में क्लासमेट के साथ शेयर करो, ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो डाउट आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, ओके, ठीक है, कमेंट में दीजिए, या फिर, ठीक है, या फिर आप अपने डाउट लिख कर अच्छे से, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ऐड करूँगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।